for Rajan and Titli. Alright, first of all, a very warm welcome to all of you. Delhi वालों एक बार थोड़ा सा और प्यार दिखा दो everyone. Look at how much love they all have for all of you. But now, I think the time that they all have been waiting for. Let's start with Dinesh ji. Dinesh sir, I have a question for you. After the mammoth success of Stree and Chhawa, it's as if the small town India की नस जांच ली है आपने. What's your secret ingredient for making these funny, heartwarming films? वो भी small town India में based. I don't think Chhawa was funny, but I'll take the line. I think the special sauce is that all the films you mentioned, उसकी पहली स्क्रीनिंग दिल्ली में हुई थी, है ना? है ना? बिल्कुल. So आज भी 8 बजे हम पहली बार पिक्चर दिल्ली में देखेंगे. तो I think Delhi is that right from Love Aajkal 1, the secret sauce is Delhi. So for us, that's why we are here, and we're going to interact with you and then see the film, and hopefully you'll feel that the same way about the film that Karan has said while making it. तो आप give Karan a big shout. ये दिल्ली वाला ही है, उसने दिल्ली की पिक्चर बनाई है. Hello everyone. Thank you Dinesh sir. Pleasure to have you here amongst us. Moving on to Karan. Karan, how was the experience working with these two amazingly talented actors? And ये madcap film बनाने का experience कैसा रहा आपका? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा. I mean, राज सर और मामिका के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, ये तो सबको ही जानते ही हैं. बट एक्टर होने के साथ साथ ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं. एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. और हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया और दिल से बनाई है फिल्म. मैं भी दिल्ली वाला हूँ और आप लोगों के बीच में से ही निकला हूँ और होप करता हूँ आपके दिल तक ये फिल्म पहुँचेगी. बिल्कुल पहुँचेगी, पहुँचेगी कि नहीं? Glad to have you here, Karan. Thank you so much. Moving on to Rajkumar Rao. There's a certain innocence in small town love stories, and how do you tap into that emotional simplicity while keeping the performance so layered as you do? कैसे हो मेरे दिल्ली वालों? क्या बात है यार, लगता है अपने घर आ गए वापस. इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हो? I love you too, Karan. स्त्री में डेली ने सिखाया था कि ऊर्जा पे कंट्रोल जरूरी है. आप कुछ कंट्रोल मत करो, सारी ऊर्जा निकाल दो स्क्रीनिंग पे आज. But first of all, thank you for coming guys. आज पहली बार हम फिल्म दिखा रहे हैं किसी को भी, अभी तक मैंने भी नहीं देखी है, तो पहली बार आप लोग देख रहे हैं भूल चूक माफ, जो हमें पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी. Because it's insanely funny and the sweet messaging that we have towards the end, जो आपके दिल तक पहुंच जाएगी. आपको बहुत हंसाएंगे और फिर प्यारी सी बात कह जाएंगे एंड में. Thank you brother. Thank you. But yeah, of course, small town characters, because मैंने ये जिंदगी जी है, मैंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा है अपने आसपास, खुद मैंने वो जिंदगी देखी है, तो वो कहीं ना कहीं एक रिलेटेबल फैक्टर है उन कैरेक्टर से. बट ऑफ कोर्स एज कैरेक्टर देन यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च एंड ओन होमवर्क. अलग डायलेक्ट है, अलग एक्सेंट है. कॉमेडी इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म, तो वो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. इट्स नॉट इजी. बट थैंक्स टू करण कि उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी. थैंक्स टू डीनू, उन्होंने इतने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया. और अब आपके हवाले है सब कुछ. दोस्तों सच में मजा आएगा, बहुत मौज आएगी. थिएटर्स में देखना, अच्छी लगे जो कि लगेगी, जाकर अपने दोस्तों को बताना, फैमिली को बताना, और सोशल मीडिया जिसपे हम सारे दिन लगे रहते हैं ऐसे करके उस पे छाप देना, हाहाकार मचा देना कि भूल चूक माफ आ रही है 9 मई को थिएटर्स में. Alright, thank you so much. Mamika, moving on to you. You're women on screen, and how does this relatability mean to you as an actor? How important is it in stories like Bhool Chook Maaf? I don't know if I want to be relatable. I think this is how I am, and I'm glad that people relate to my characters that I play. I think when I read them, I relate to them, and hence I feel that my audience will also relate to them. And I'm so glad that all the characters that I've played, that people have really loved them, and I have received so much love. Yeah, and I think relatable characters में ना, जब आपको आप ही थोड़े से कुछ दिख जाते हैं कैरेक्टर्स में, तो उसी वजह से आपका दिल आ जाता है ना उन पे. तो आई थिंक जब मैं पढ़ती हूँ कोई स्क्रिप्ट और उसमें मेरा दिल आ जाए,
तो मैं भी वैसी ही फिल्में करना चाहूँगी. And I'm so glad that Bhool Chuk Maaf came to me. I'm so grateful and thankful for this opportunity. And I enjoyed playing Titli. She is so much fun. I think so many girls are going to relate to it for sure. Yeah. We cannot wait to see you on screen. Can we? थोड़ा और शोर मचाओ यार. Thank you so much. Moving on. मैंने सुना है आप दोनों की घड़ी बिल्कुल अभी हल्दी पे ही अटकी हुई है, तो आप लोग कुछ मदद लेना चाहेंगे हमारे दिल्ली वालों से? Please, दिल्ली बचा सकता है हमें. दिल्ली वालों के पास बहुत कमाल के आइडियाज होते हैं, हम सब जुगाड़ू हैं. तो आई थिंक ये जो हल्दी की फसड़ में फंस गया है रंजन कि 29 जो है खत्म नहीं होकर दे रही है, 29 बार से 29 ही आ जा रही है. इससे अगर निकलना है तो कुछ बताओ यार, एक तो अच्छे आइडियाज बताओ. व्हाट टू डू, क्या I करें think जो इंडिया गेट के चक्कर लगाओ, या फिर हामिदा आप तो बंगला साहब बिल्कुल पास है, मत्था टेक लो. बंगला साहिब माथा टेकने से गुड आएगी. बिल्कुल. यस मैम. हेलो सर, आप मेरे चींटियों को आटा खिलाओ. उससे अभी मैं क्या खिलाऊंगी? चींटियों को आटा खिलाएं. कौन सा, गेहूं का, बाजरे का, ज्वार का? आटे का. आटे का आटा. ठीक है, मैं आटे का आटा खिला दूंगा चींटियों को. वैसे एक और आइडिया है हमारे पास राजन, आप इनको सरोजनी नगर भी ले जा सकते हो, आपकी भसड़ शायद थोड़ी कम हो जाए. सरोजनी नगर. What do you think? भामिका, गए हो आप सरोजनी नगर? सर दिल्ली वाला जुगाड़ लेके भाग जाओ. लेके भाग जाए. मूलचंद के पराठे. ये अच्छी बात है यार, बनारस से मूलचंद का दूध पड़ेगा बेटा. एक बार गुड़गांव घूम के आओ. गुड़गांव घुमाने ले जाए इनको साइकिल से. तो सीट आगे ऐसा डंडे पे बैठा के प्यार से साइकिल पे घूमने जा रहे हैं. हेलो सर, आई हैव एन आइडिया. यस बताइए. आपको हर सैटरडे 5 सैटरडे तक आपको काले कुत्ते को ढूंढना है. ओके. और उसके सामने 5 चक्कर लगाना है. कुत्ते के सामने 5 चक्कर लगाना है और उसको बोलना है जय हो 5 टाइम. देन आपकी विश कंप्लीटली पूरी होगी. 5 बार कटवाना भी है. पूजा करोगे तो क्यों काटेगा? That's true. ठीक है, 5 बार ढूंढिए, 5 चक्कर और ये आप लोग घर पे ट्राई मत करना कि आप पूजा करें और काला कुत्ता नहीं खाते. ऐसा नहीं है. हाँ जी बताइए. और आइडिया, किराए पे जाके झाड़ू जो है अपने सर के ऊपर मार. चौराहे पे जाके झाड़ू अपने सर के ऊपर मार लें. यस बताइए. सॉरी क्या हो गया? रोहिणी के पास ड्राइव करने के लिए अपनी कार ले जाओ. जाम इतना लगता है 1 दिन तक वहीं रह जाओगे, फिर जब तक पहुंचोगे. ये बोले मेरे दिल्ली वाले. मेरे से डांस कर लो, एनर्जी जाती है. तो स्वीट, पक्का आपके साथ पक्का डांस करेंगे. आपके साथ इसके बाद पक्का डांस करेंगे. यस थैंक यू. डीडीसी बस में घूम ले. थैंक यू सो मच यार. हाँ जी. हाँ जो कैलेंडर अटका हुआ है ना, साले को फाड़ दो. हाँ तारीख देखनी क्यों है? तारीख देखनी क्यों है? दिल्ली वाले मस्त होते हैं ना, दिल्ली वाले मस्त होते हैं, सबको मस्त कर देते हैं. कैलेंडर फाड़ो और आगे बढ़ो. कैलेंडर फाड़ो आगे बढ़ो. Thank you for all the wonderful ideas that you all have, guys. Thank you so much. Raj, Vamika. We love you too. Thank you. Thank you for all the lovely ideas, you guys. Raj, Vamika, हमारी मीडिया के पास बहुत सारे questions हैं आप दोनों से पूछने के लिए. तो क्या कहते हैं आप लोग, शुरू करें? Absolutely yes. जी. All right, over to the media. हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दो तो शादी हो जाएगी. शादी यही कर लो. भैया सर अरे आराम से. यस हमारे मीडिया के दोस्त. सर मेरे दो सवाल हैं हिमांशु दिस साइड. सबसे पहले वामिका, फर्स्ट मेडॉक फिल्म में आपकी एंट्री हुई है और फिल्म का बज़ ऑलरेडी इतना बन चुका है, तो कैसा रहा फर्स्ट डे से अब तक का सफर मेडॉक के साथ? अगर आप शेयर करें. बहुत खूबसूरत. इट्स लाइक अ ड्रीम. एक्चुअली ये मेरी है पहली फिल्म, लेकिन मेरी पहली फिल्म इनके साथ बहुत साल पहले हो चुकी है, जो कि लव आजकल, जो कि
मैं मैडोक के साथ बहुत सालों से जुड़ी हूँ, बस काफी सालों बाद अब हमने एक्नॉलेज किया है कि है ये रिश्ता. But I'm so glad that Dino sir, Karan sir, they showed that faith in me कि मुझे ऐसा मौका मिला. I'm very grateful और मुझे बहुत मजा आया. बहुत ही अच्छा माहौल था. जब फिल्म बनाते हो अच्छा माहौल हो ना तो फिल्म अच्छी बनती है. And I'm very excited and very positive about this film because the experience was so positive. Hello. दिनेश सर, एक मेरा सवाल आपसे है. सर, एक दौर था 90s 20s का जब कहा जाता था कि वायरस की फिल्म में अगर किसी फीमेल एक्टर ने काम कर लिया तो उसको एक्ट्रेस का दर्जा दे दिया जाता है, मतलब उसने सब कुछ हासिल कर लिया. और आज बोला जाता है कि मैडॉक की फिल्म में अगर किसी एक्टर ने काम कर लिया तो एक्चुअल में वो एक्टर के रूप में साबित होता है. और आमिरा ने अभी जस्ट एंट्री मारी थी कि पहले भी लास्ट फिल्म किया था लेकिन अभी किया. तो किस तरीके से आप ये दौर देखते हैं? मैडॉक इन दोनों छाया हुआ है और बैक टू बैक फिल्म में काफी चर्चाओं में रहती है. तो आमिरा के बारे में बात करें तो आई थिंक बिफोर एनीथिंग एल्स वो एक्टर है. And I think Maddock is the home for all actors. So if you have that talent, it's quite democratic and you will find your place there. और ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं, यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं जो मैडॉक के, मैं यहाँ बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है सिर्फ नहीं, जो बहुत मेहनत करते हैं कि मामिका जैसी कितनी लड़कियाँ हैं जिनको चांस नहीं मिलता उनको हम चांस दें. बिकॉज हम भी ऐसे थे, हम आए थे, हमारा कुछ बैकग्राउंड है नहीं लेकिन ऑब्वियसली वी फाउंड द स्पेस हियर. तो आई थिंक अभी जैसे आपने बोला हमारी पिक्चरें चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और भी बहुत सारी पिक्चरें चलें. आप हर हफ्ते थिएटर में आते रहें तो ओवरऑल बिजनेस चले, सो दैट वी कैन मेक बेटर फिल्म्स, यू नो, वी कैन मेक लार्जर फिल्म्स, वी कैन मेक इंडिया प्राउड. तो इट्स जस्ट द बिगनिंग. हमारा एक सिंपल सा थियरी है, जब हम कहानी सुनते हैं तो ये कहानी वी कैन नॉट मेक, बनानी है and then we work everything out. So जब तक I think मैडॉक का सेंटर वो रहेगा और वहाँ हम देखेंगे नहीं और कहानी पे रहेंगे तो हम ठीक ठाक रहेंगे. Hello. Hi. This is Vartika from Live Hindustan. मेरा क्वेश्चन राजकुमार राव से है. In Bhool Chuk Maaf, your character is stuck in a haldi phase of life. Have you ever felt similar situation in your real life career? To feel stuck? Yeah. Oh wow. I think when I was in school, तो all the exam days used to feel like that. यार ये कब खत्म होगा ये loop? है ना, बहुत लगता है ना ऐसा कि कब खत्म होगा ये. So I think yeah, only that time. Otherwise I haven't felt stuck ever. Yeah. And of course when I used to travel in those roadways, DTC and Blue Line buses at that time during my theatre days, तो गुड़गांव to Delhi sometimes, तो उसमें इतनी भीड़ होती है कि आप सब चिपक के ही खड़े होते हैं. तो दैट टाइम आल्सो आई फेल्ट वेरी स्टक कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, जब ये लोग उतरेंगे मुझे उतार देंगे. That's how I got connected to the audience. Yeah, exactly. Hi guys, Vamika, सामने आपसे सवाल है. Titley brings joy and confusion in equal measure. Did you draw from any real life experiences to portray her emotional highs and lows? From all vibes. From my own life. Okay. Titley, that's why I said that Titley is very relatable because I could really Titley और रंजन का रिलेशनशिप भी ना बहुत ही प्यार भरा और बहुत ही नोक झोंक भरा है. And I think सबके रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं. And I'm आपको मानोगे नहीं, बीच बीच में जो कुछ लड़ाइयाँ और कुछ एक दूसरे को रिएक्शंस दिए वो रियल लाइफ में मैंने भी किए हैं. तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी. मेरी खुद की लाइफ से ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने तितली और रंजन के रिलेशनशिप में ऐसे डालने की कोशिश. आपको लगता है तितली थोड़ी डोमिनेटिंग है? नहीं. हाँ. तो आप भी हो. हाँ. जैसे उन्होंने बोला कि तितली आपको सबकी बीवियों की याद दिलाएगी, तो आई थिंक सब वाइफ्स आर, है ना, सबकी वाइफ्स डोमिनेटिंग होती हैं. अभी तुम सबको याद. ऐसा हमने नहीं बोला. ऐसा हम 30-40 मर्दों ने बोला ही नहीं है. मेरा एक सवाल दिनेश सर से है. हाँ जी. सर, ये जो गाना है चोर बाजारी, ये रीमेक वर्जन है ओरिजिनल का, तो इसका आइडिया कहाँ से आया सर इस मूवी में यूज करने का? मेरा ही गाना था. जी जी जी. मैंने सोचा अपने आप को सिचुएशनल सॉन्ग है. नहीं, एक्चुअली अगर आप इस सॉन्ग का एक लाइन है, घटनी थी वो घटना घटते घटते घट गई. तो मुझे लगा ये लाइन जब मैंने सुनी तो ये एक्चुअली पहले हमने ट्रेलर में डाला तो टीजर में, तो इससे मुझे लगा कि दिस सम्स अप व्हाट रंजन इज गोइंग थ्रू एंड दैट्स हाउ इट केम. इतना
इफ साउंड इज समथिंग आप भी रियलाइज करेंगे जब आप गाना सुनते हैं तो पहली बार आप सिर्फ उसको कोई अदर लेवल पे कनेक्ट करते हैं, फिर सेकंड टाइम आप लिरिक्स सुनते हैं और समझते हैं वो क्या बोल रहा है. सो आई थिंक म्यूजिक इज व्हाट फीलिंग साउंड लाइक. You connect to it very very naturally, instinctively, and then you analyze why you like it. तो भूलचूक के साउंड में चोर बाजारी एकदम perfectly जा रहा था. There was no, that's the reason it is part of the album. And also because Vamika had done something in Love Aajkal, तो I thought कि थोड़ा connect आ जाएगा. So honestly that's the reason. राज मेरा सवाल है. श्री नाम है मेरा राजकुमार जी. मेरा सवाल आपसे ये है कि पत्रलेखा से जब आपकी शादी हुई तो जैसा मूवी में है जैसे भसड़ इस तरह की कोई भसड़ हुई आपके शादी के दौरान और आपने किसी से कहा आप इनके घर पे जाके क्यों भसड़ करा और शादी में कभी मतलब कुछ ऐसी भसड़ हुई कि आपने भूल चूक माफ कहा हो किसी से? नहीं सर, टचवुड बहुत बढ़िया शादी थी. 3 दिन बहुत पार्टी की, तीनों भी वहाँ पे थे. आई थिंक तीनों कुछ बसर तो हुई नहीं ना, बहुत बिल्कुल बहुत मजेदार. रात से तो बिल्कुल. हाँ, पीछे कुछ हुआ तो पता नहीं, हमारे सामने तो नहीं आया. लेकिन नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ बसर हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई. हम लोगों ने 11 साल डेट किया, देन वी टुक दिस कॉल कि लेट्स गेट मैरिड, एंड देन आफ्टर 11 years we also become best friends apart from just being, you know, partners in a romantic relationship. So it's like 2 best friends, 2 lovers getting married. So it was just all fun. कुछ नहीं हुआ. मेरा सवाल वामिका से है. दिस इज शारिकुल फ्रॉम जी न्यूज़. मैंने आप शुरुआती फिल्म देखी थी 16, फिर 23 भी देखी और भूलचूक माफ भी देखने जा रहा हूँ. तो आप तब भी 16 की लगती थी, आप भी 16 की लग रही है. तो आप क्या ऐसा स्किन केयर रूटीन कर रही है या डाइट रूटीन कर रही है? आपको ट्राई करना है. मेरे जो भी व्यूअर्स देखेंगे तो वो भी आपसे सीख पाएंगी. तो प्लीज बता दीजिए. मैं आपको बताऊं कि मैंने हैक जो मुझे पता चल गया है पिछले 1-1.5 साल से मैं वर्कआउट कर रही हूँ और मैं जैसे अपना ख्याल रख रही हूँ. हैक है घर का खाना और रोज सुबह उठकर वर्कआउट करना. यही है हैक. और अच्छा खाना खाएंगे तो स्किन भी अच्छी होगी, सब अच्छा रहेगा, दिमाग भी सेट रहता है थोड़ा. तो घर का खाना. हाँ जी, रोज सुबह वर्कआउट कुछ भी करो. आई थिंक आप 1 घंटा वर्कआउट करोगे बेस्ट. हेलो, हाय राज, प्रेमा दिस साइड फ्रॉम सक्रिय भारत न्यूज़ चैनल. फर्स्टली आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे हर मूवी में आपका एक ऐसा डायलॉग आता है जिसे लोग भूलते ही नहीं है. तो इस मूवी में आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है जो लोगों तक एकदम पहुंचने वाला है सीधे सीधे? मैम इसमें ना बहुत सारे ऑनेस्टली. एक तो वो बाबू नहीं है हम, वो काफी पॉपुलर हो गया है. एक जो फर्स्ट टीजर है था जिसमें बोलती है कि हम साला यहाँ अपनी मेहंदी छोड़ के आए हैं, तो वो एक इम्प्रोवाइज लाइन दी थी. ऐसा कौन सा कर रही थी जो बीच में छोड़ के आ गई? And that was improvised by him on the spot. मेरे वहाँ पे हंसी निकल गई जैसे उन्होंने बोला, बिकॉज़ ये तो था नहीं. और आई थिंक वो जिस तरह से वो रिएक्ट करता है बिकॉज़ वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है. ये बोलती है हमें नहीं करने देंगे जैसे शादी हो गया है, हमें नहीं करने देंगे. तो इसमें बहुत सारे, कल भी हमारे ट्रेलर आया वो जब मैं वो भी देख रहा था तो बहुत मजेदार डायलॉग्स हैं उसमें. एक बहुत ही एक है कि अरे पर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलता है कि अब हम हैं चूसन वन तो क्या करें. सर एक बार वो बाबू नहीं है हम वाला डायलॉग बोल दीजिए. बाबू नहीं है हम. हाय सर, दिस इज हाय. सर मेरा क्वेश्चन, आफ्टर वाचिंग छावा we all want to see more movies like that. तो ऐसी और movies आप प्लीज बनाइए, it's just a request. आप लोगों को इतनी अच्छी लगी तो इसलिए अभी हम महाअवतार बना रहे हैं. तो होपफुली आपको भगवान परशुराम की कहानी उसको लगेगा तो I think that film will be the largest in this genre for a very long time. मेरा दोस्त अमर कौशिक इधर ही था, वो डायरेक्ट कर रहा है. And I think after still he is taking 3 years doing nothing and only making that. So I think you'll be happy. Thank you sir. And one more last question. जैसे आप यहाँ पे हल्दी में अटक गए हैं, ऐसा कभी moment आए कि you want to stuck in that moment? I want to stuck in that moment. You want to stuck in that moment.
Oh, again, like my wedding, of course, I would love to be stuck there. And yeah, the days when I used to, yeah, of course, national award mein, you know, the day I got my national award and I came down in Vigyan Bhavan mein, and the way my mom hugged me that day after the national award, seeing me with the president. So I think that moment. Thanks. हेलो एवरीवन, मेरा सवाल राजकुमार राव से है। अगर आप कुछ मूवीज में अपने सरकारी नौकरी वाला फंडा लेकर जरूर आते हैं, क्या बचपन से कुछ शौक था कि सरकारी नौकरी मुझे करना है? हाँ, मतलब एक दो में हुआ है ऐसा, पर हर बार कुछ गड़बड़ी हो गई है यार। सरकारी नौकरी बहुत टफ है यार क्रैक करना। पर हाँ, क्योंकि आई थिंक मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे ताऊजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे चाचा जी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो सब तरफ इतनी सरकारी नौकरियां थी, तो मुझे लगा उस टाइम तो नहीं कर पाए, तो फिल्मों में ये कसर पूरी कर लेते हैं सरकारी नौकरी को चुनने का। तो थैंक्स टू करण कि उन्होंने ऐसा कैरेक्टर लिखा कि जहाँ पे सरकारी नौकरी बहुत अहम हिस्सा है इस किरदार का, इसके जीवन का, इसकी शादी डिपेंडेंट है सरकारी नौकरी पे, कि 2 महीने में सरकारी नौकरी ले आओ, कितनी तुम्हारी। Hi Dinesh sir, good evening. This side from Ankit, this side from Newsex. मेरा सवाल आपसे है कि आप एक वर्सेटाइल एक आर्ट फॉर्म लेके आते हैं हर बार जब भी बड़े पर्दे पे आते हैं, तो इस कहानी के लिए आपको कहाँ से कास्टिंग का एक आइडिया है? क्योंकि एक जहाँ हमारा हरियाणा का लौंडा, एक पंजाब की, भी दोनों जॉनरास में, चाहे पंजाबी हो वो भी जो भी करते हैं दिल खोल के करते हैं, हरियाणा वाले को भी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है, खाते हैं। तो ये कास्टिंग किस तरह आपको आया कि इन दोनों को ही मेरे को चाहिए फ्रेम में? आपने जवाब दे दिया, लेकिन तो जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है पहले मैं राज को फोन करता हूँ, इस बार उसकी डेटें हैं कहीं, तो उसके पास डेट थी। And I think what's very important, especially in films like which have family comedy, the couple's pairing and chemistry is very, very important. Vamika is somebody I wanted to work with for some time. I felt she was a fantastic actor. उसने ये किया नहीं था, तो मुझे बड़ा मजा आता है अगर एक ऐसा किरदार हो जिसको हम जानते हैं, पर उसने ये टाइप का ह्यूमर नहीं किया, जैसे जिसमें सब अपनी बीवी देखते हैं, वैसा कैरेक्टर जो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, या गर्लफ्रेंड। एंड आई फेल्ट वामिका ने कॉमेडी नहीं की थी, राज ने भी आई थिंक स्टिल में दिखा दिया है कि हिज कॉमिक टाइमिंग इज अनबिलीवेबल, बट आई फील दिस कैरेक्टर हैज अ लॉट मोर हार्ट, यू नो। व्हेनेवर आई फील इन अ फिल्म Raj is really in love, the common man has 2 issues. The biggest thing is that मेरी फैमिली और मेरी बीवी खुश है, करेक्ट, एंड उसके लिए बीवी चाहिए। So all he's wanted to do is love this girl, and the father says के you know क्या चाहते हैं पेरेंट्स कि तुम जब सेटल हो तो अपने आप को संभाल सको दोनों, राइट, जिसके लिए जॉब नेसेसरी है। तो मुझे लगता है ये कहानी हर कॉमन मैन की है इंडिया में, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोकरी का डैड बोलेगा नौकरी, and I think Raj has this beautiful ability to slip into that common man, you know. And Vamika as herself said she is the character, she's a dominating girlfriend. So I spoke to her ex-boyfriend and he said she's perfect. That's how. वामिका दोनों आपकी तरफ से उन युवाओं को जिनकी शादी होने वाली है, उनको क्या कहना चाहेंगे? देख लो यार, आपकी अपनी किस्मत है, हम तो भाग्यशाली रहे, पर हर कोई भाग्यशाली रहे ऐसा होता नहीं है, पर आप ये रिस्क ले लो। आई थिंक इट्स वर्थ इट, इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, मजे करो, हैव फन एट योर वेडिंग, खाली हल्दी में मत अटको, जल्दी से आगे बढ़ो। सर मेरा सवाल राजकुमार सर से है, मैं कोमल गौतम का फेडरल पेशेंट हूँ। सर मेरे से मुझे आपसे पूछना था कि इस शूटिंग के दौरान ऐसा कोई किस्सा या ऐसी कोई बात या ऐसा कोई फनी मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो और आप शेयर करना चाहते हो सबके साथ? आप जिनकी लाइफ होने वाली उनकी हल्दी को लेकर आप क्या कहेंगे? उनकी हल्दी को लेके मतलब उनकी हल्दी को लेके क्या बोल रहे हैं? उनके बीवियों की सुनो, क्या कहना है? नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे भी आप खुश रहें, आप अकेले खुश हैं अकेले रहिए, अगर आपको शादी करके खुशी मिल रही है तो शादी कर लीजिए, तो मर्जी करिए आपकी लाइफ में। आपको पहले बोल रही अकेले रहो। हेलो बाबूज, कैसे हो आप लोग? दिस इज सिद्धि शर्मा फ्रॉम एबीपी न्यूज़। बाबू, हेलो बाबूज। बाबू सोना नहीं है, हम नाम है हमारा। आप इतने क्यूट लगते हो तो आप बाबू ही लगते हो। आपके लिए बाबू सोना।
मेरा पहला क्वेश्चन करण सर से है कि सर जब राजकुमार राव की बात आती है तो उन्हें मिडिल क्लास बॉय एक रिलेटेबल कैरेक्टर के रोल में लोग अपने आप ही इमेजिन कर लेते हैं। तो क्या इस फिल्म के लिए राजकुमार से पहले आपकी कोई और चॉइस था या राजकुमार वाज द फर्स्ट एंड द ओनली चॉइस? राजकुमार मेरी पहली और आखिरी चॉइस थी और वो पहली और आखिरी बने। और उनके साथ काम करके आपको मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस था? बहुत खराब लगा। ये तो हम जानते हैं कि आपको खराब नहीं लग रहा है सर। मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी पहली और आखिरी चॉइस बहुत ही अच्छी थी और मैंने बहुत सही। मेरा अगला सवाल राज और भामिका से है कि आपका जो गाना है चोर बाजारी, जब ये गाना रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली इस गाने को दीपिका और सैफ की केमिस्ट्री से कंपेयर किया गया एंड राजकुमार राव के रोल्स को भी उनके ही अपने दूसरे फिल्मों के रोल से बार बार कंपेयर किया जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया पर कंपैरिजन की ट्रोलिंग का ये जो सारा ट्रेंड चल रहा है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कहना चाहते। बिल्कुल सही बात कही आपने। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए। ओके बाबू। हाय दिनेश सर, प्रियांशी दिस साइड। सर मेडॉक का जब भी नाम लिया जाता है तो ये पता होता है कि फिल्म सुपर हिट होनी ही होनी है, लेकिन अब आपकी फिल्मों की शुरुआत से देखें तो स्त्री हो, भेड़िया हो, मुंजिया हो और अब भूल चूक माफ, आप फिल्म के टाइटल्स कैसे चूज करते हो कि टाइटल इतना अच्छा होता है ना कि फिल्म अपने आप उसके बाद इतनी सुपर डुपर हिट हो जाती है? मतलब ये टाइटल्स के पीछे का क्या राज है कि इतना अट्रैक्टिव टाइटल? आई डोंट थिंक सो कि बाकी होते हैं। आपकी फिल्मों के टाइटल्स इतने क्रेजी से होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि चलो भाई ये फिल्म तो देखनी है। करेक्ट, समझ गए। थैंक यू। बट यू राइट, काफी कोर्ट टाइटल होते हैं। तो क्या है राज, क्या है? मेरे फैमिली ने मेरा नाम दिनेश रख दिया, तो मैं सोचा पिक्चरों के टाइटल थोड़े आई थिंक यू नो, आप जो बोल रहे थे पहली बार मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना था, स्त्री टाइटल रखा था, तो मैं जिससे मिला था उसने मुझे बोला था कि स्त्री नाम की पिक्चर हिंदुस्तान में नहीं चल सकती बिकॉज 75% मेल ऑडियंस है। आप सब ने रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो आई थिंक वी ट्रैवल्ड द रोड लेस ट्रैवल एंड you're finding them unique। और मेरा लॉजिक है, अगर आप यूनिक और थोड़े ऑडिशियस नहीं है, थोड़े आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो आज लैंड नहीं होगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये रेजोनेट हो रहा है। और जब आप ऐसे बोलते हैं मैडॉक की पिक्चर आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील दैट यू नो माय डैड वुड बी रियली हैप्पी, बट आई आल्सो गेट लिटिल स्ट्रेस्ड कि आई होप वी लिव अप टू इट ऑल द टाइम। वी डोंट, द डे हमें लगे हमें काम आता है उस दिन इट विल बी द एंड। एवरी Thursday I'm nervous, I'll be nervous this way. I'm happy that what we set out to make we've made. I think the film is better than the script, but there's always that nervousness that I hope you guys find it relatable, because ultimately y'all are the judges on this one, and I think at least इस पिक्चर में हम बोल सकते हैं भूल चूक माफ, पर बाकी पिक्चरों में वो नहीं बोल सकते हैं। But titles I think are very important, and I think they are almost like brands. तो अगर one word हो तो it's easier to pronounce. I try to do one words or a saying which you remember, like भूल चूक माफ is like saying sorry ना, तो याद हो जाता है. So I think titles play a very important role. But he gave me this title. We tried 2-3 others, but he came with the script with this one. So if you like this one, it's not on me, it's on Karan. Thank you. Hello everyone, my name is Shringar. I'm Hi, from Shringar. AP News. My question is to first all 4 of you. बहुत नई जोड़ी आप लोग की ऑन स्क्रीन, तो कोई ऐसा होलसम मोमेंट जो आप लोग ने एक्सपीरियंस किया हो जो आप शेयर करना चाहें हम सबसे? मेरी और दीपक की, मेरी और आपकी जोड़ी अच्छी लगी हमारी। नजर ना लगे। नहीं, I think of course credit again goes to Karan and Dinu because he thought of pairing us together, and I had a great time working with Bhamika. जैसा उन्होंने कहा कि हम दोनों ही नॉर्थ से हैं, हम दोनों ही हम दोनों ही आउटसाइडर हैं, तो बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए थे हमारे। एंड देन वी बोथ आर रियली पैशनेट अबाउट आवर वर्क। तो जब आप सेट पे जाते हो, यू डोंट हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड्स टू प्ले बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? अगर आप दोनों अपना काम अच्छे से कर रहे हो देन यू विल पोर्ट्रे दैट केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन, जो आई थिंक भामिका और मैंने बहुत अच्छे से सेट किया था कि ये मजे करेंगे इस फिल्म में, बिकॉज इट्स सपोज्ड टू बी फनी, इट्स सपोज्ड टू बी एंटरटेनिंग। कि हम जितना मजे करेंगे
उतना उससे ज्यादा मजे आपको आएंगे स्क्रीन पे देखने को। एक और सवाल है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ, तो आप अभी फरवरी में गए थे, हाँ जी, तो आपकी ऐसी क्या भूल चूक या पाप धुलने आप गए थे, आप मेरे को बताइए। ऐसे कौन से पाप धुलने गया था? सोच रहा हूँ कौन से वाला बताऊँ। नहीं देखिए, मुझे माँ गंगा से बहुत प्यार है, मुझे और पत्रलेखा दोनों को। तो हमें जब भी मौका मिलता है हम ऋषिकेश, हरिद्वार या प्रयागराज हम जाते रहते हैं जस्ट उनसे मिलने। वेल दिल्ली वालों, आपके सवाल, आपका जोश, सब कुछ अनबीटेबल है, तो क्यों ना दिल से दिल तक की एक फोटो हो जाए हमारे राज और वामिका के साथ।